اسلام آباد امن مذاکرات کے تناظر میں پاکستان عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مختلف ممالک کے رہنماؤں کے ٹیلی فونک رابطے، کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی۔ امیر قطر بحرین کے بادشاہ لبنان کے وزیر اعظم کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون، خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آسٹریلیا کے چانسلر، جرمن چانسلر اور اٹلی کے وزیر اعظم کی بھی ٹیلی فونک گفتگو، پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو قابل تعریف قرار دیا۔ عالمی رہنماؤں کا کہنا تھا پاکستان کی کاوشوں کی بدولت جنگ بندی ممکن ہوئی اور مذاکرات کی راہ ہموار۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران مذاکرات کا آغاز آج سے اسلام آباد میں ہوگا۔ وفود کی سطح پر مذاکرات آج اور اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کریں گے، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مذاکرات کے مقام کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا۔ ان مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا۔ امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف کا بیان، کہا امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت روکنے کے لیے عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی ستائش کی گئی ہے۔ جنگ کے ان 40 دنوں میں ایران نے دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا۔ یہ جنگ اسٹریٹجک حکمت عملیوں میں علاقائی اور عالمی تبدیلیوں کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔ حکومت نے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کو اسلام آباد پہنچنے پر ویزا دینے کا اعلان کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں لکھا کہ پاکستان میں امیگریشن حکام انہیں آمد پر ویزا جاری کریں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے سلسلے میں آنے والے تمام وفود اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تمام فضائی کمپنیوں سے درخواست ہے کہ وہ ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ 93% پاکستانی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کے حامی ہیں۔ 82% پاکستانیوں کو عالمی سطح پر پاکستان کی ثالثی کا علم ہے۔ 88% عوام چاہتے ہیں کہ پاکستان عالمی تنازعات میں فعال کردار ادا کرے۔ گیلپ پاکستان سروے کی رپورٹ بتایا گیا 72% پاکستانیوں نے پاکستان کے کردار کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا، سے 5% پاکستانی غیر جانبدار رہنے کے حق میں ہیں۔ 87% پاکستانیوں کے مطابق جنگ بندی دیر پا امن کا سبب بن سکتی ہے۔ سروے 8 اور 9 اپریل کو مکمل کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن معاہدے سے پر امید، کہا کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ قریب ہو سکتا ہے، پیش رفت مثبت سمت میں جا رہی ہے، اسرائیل بھی اپنے حملے کم کر دے گا۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسلام آباد میں جاری مذاکرات کے حوالے سے بہت پر امید ہوں، توقع رکھتے ہیں کہ سفارتی کوششیں جلد نتائج دیں گی۔ ایرانی قیادت مذاکرات میں معقول رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، اگر معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال بہت تکلیف دہ ہوگی۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد خطے میں فضائی حدود بحال ہونا شروع، جہازوں نے اڑان بھرنا شروع کر دی۔ عراق کا بغداد، بصرہ اور اربیل ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن بحال، 24 گھنٹوں میں عراق سے 12 پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ اردن ایئر لائن کی عمان بغداد 2 پروازیں دوبارہ شروع۔ فلائی دبئی نے دبئی سے بصرہ کے لیے 2 پروازیں چلائیں۔ عراق ایئر بیس نے 40 دن بعد بغداد سے استنبول پرواز روانہ کی۔ پنجاب حکومت کا سوشل میڈیا پر بچوں اور خواتین کی ہیراسمنٹ اور بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام، پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ متاثرہ افراد کو شکایت کے لیے تھانے یا دفاتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، موبائل یونٹ خود موقع پر پہنچ کر شکایت درج کرے گا۔ ورچوئل پولیس اسٹیشن، فرنٹ ڈیسک اور PKM ایپ کے ذریعے بھی شکایت درج کرائی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، اجلاس میں پنجاب آن لائن سیفٹی ایکٹ 2026 کے مسودے پر کام شروع کرنے، سائبر پولیس اکیڈمی اور سائبر پیٹرول ونگ کے قیام کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ پنجاب حکومت اور پاکستان ریلویز کے درمیان شراکت داری کا جائزہ۔
पंजाब में 9 रेलवे रूट्स बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की विजन के तहत रेलवे मंसूबों में तेजी। लाहौर रावलपिंडी मुल्तान ट्रैक्स की रीवैम्पिंग का आगाज। 8 करोड़ शहरी रेलवे शराकतदारी से मुस्तफीद होंगे। लाहौर रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन पर काम जारी। रेलवे ट्रैक्स के साथ जंगलात लगाने का मंसूबा शुरू कर दिया गया। कराची में सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 की मंजूरी। सैयद मुराद अली शाह ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ये मंसूबा शहर में जराइम की रोकथाम और सिक्योरिटी निज़ाम को मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। वजीर आला सिंध ने मुतालिका इदारों को काम तेज करने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन। 2025 बेहतर साल करार। एशियन तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी ताज़ा मुआशी आउटलुक की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में मुआशी नमो में बेहतरी देखी गई। महंगाई में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि सख्त मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया और इस्तेहकाम की बुनियाद फराहम की। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो 2026 में 3.5% तक रहेगी। 2027 में मजीद बेहतरी के साथ 4.5% तक पहुंचने का इम्कान है। सनती शोबे की बहाली और निजी सरमायाकारी में इजाफा मईशत को मजीद तक़वियत देगा। कामयाब सिफारतकारी और पायदार मौशी इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तान की तरसलात ज़र में नुमायां इजाफा। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक मार्च 2026 में तरसलात ज़र 3.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो फरवरी के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुसलसल मुल्क की मईशत की तरक्की और माली इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा आलमी हालात के बावजूद तरसलात ज़र की आमद में इस्तेहकाम बरकरार है। मुस्तक़बिल में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान में आज यौम दस्तूर मनाया जा रहा है। आज के दिन 1973 के आइन को हतमी शक्ल दी गई थी। ये आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया था, जबकि आइन पाकिस्तान की तैयारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त के सियासतदानों का अजीम कारनामा है। साल 71 के बाद इन सियासी अकाबरीन ने मुल्क को मुतफ़क़ा आइन दिया, जिसे 10 अप्रैल 1973 को हतमी शक्ल दी गई। आइन के मुताबिक पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होगा और इसे अक्सरती जमात मुंतखब करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1973 के आइन को पाकिस्तान की जमहूरी शनाख्त, विफाकी तवाज़ुन और शहरी हुकूक की ज़मानत करार दे दिया। यौम दस्तूर के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ये आइन सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि रियासती इदारों और हुक्मरानी के निज़ाम के लिए रहनुमा उसूल है। मुकम्मल अमल दरामद से ही जमहूरियत और इंसाफ का क़याम मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 10 अप्रैल 1973 को मंजूर होने वाला आइन अवाम और रियासत के दरमियान एक मुक़द्दस मुआहदा है, जो दोनों के हुकूक और फ़राइज़ का तयन करता है। देही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए अच्छी खबर। देही इलाकों में स्टाम्प ड्यूटी की शरह 3% से कम करके 1% मुकर्रर। गवर्नर पंजाब ने स्टाम्प ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब के मुताबिक इससे कबल शहरी इलाकों में 1%, देही इलाकों में 3% स्टाम्प ड्यूटी वसूल होती थी। इस इकदाम से ये देही इलाकों में जायदाद की खरीदो फरोख्त में इजाफा होगा। ऑर्डिनेंस के तहत शहरी और देही इलाकों में स्टाम्प ड्यूटी की शरह यकसा करके 1% मुकर्रर कर दी गई। पाकिस्तान का आइन 1973 कौम की मुतफ़िका दानिश जमहूरी जिदोजहद और विफाकी वहदत की अलामत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का यौम दस्तूर पाकिस्तान के मौके पर पैगाम। कहा कि यौम दस्तूर आइन और कानून की बालादस्ती जारी रखने के अज़म का दिन है। शहीद कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को एक मुतफ़िका आइन दिया। कौमी इत्तेहाद और यकजहती ही शोहदा की कुर्बानियों का हकीकी समर और एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जमानत है। हुकूमत सिंध का किफायत शियारी पॉलिसी नाफिज करते हुए दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात जल्द बंद करने का ऐलान। हुकूमत सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मार्केट्स, होटल्स और शादी हॉल्स के नए औकात कार्ड नाफिज कर दिए गए।
नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची समेत दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा तमाम अजला में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। होटल्स और फूड आउटलेट्स को शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विसेज पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी, जबकि शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त होगी। कराची में आईजी सिंध जावेद आलम ओडो की जेर सदारत सीटीडी हेडक्वार्टर में डिजिटलाइजेशन से मुतालिक अहम इजलास। सीटीडी के तमाम अहम उमूर को डिजिटल सिस्टम में मुंतकिल करने पर तफसीली ब्रीफिंग। सिंध पुलिस को रेड बुक को जदीद एआई फीचर्स के साथ डिजिटलाइज कर दिया गया। हाई प्रोफाइल मुल्ज़मान के रिकॉर्ड के लिए खुसूसी इंदराज और इखराज बोर्ड कायम किया गया है। डिजिटल रेड बुक को ऑनलाइन सर्विलेंस और मॉनिटरिंग ऐप से मुंसलिक करने का फैसला। आईजी सिंध के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद आलात की फौरी ज़रूरत पर जोर देते हुए मुतालिका तजावीज़ जल्द हुकूमत को पेश करने की हिदायत की है। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा 90 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक जुल्फ़िकार खोसा कुछ अरसे से लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वो 1962 में पहली बार रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। बेशतर जिंदगी मुस्लिम लीग में रहे, जबकि मुतअद्दिद मरतबा सूबाई वज़ीर, मुशीर, सेनेटर, गवर्नर पंजाब के ओहदे पर फाइज रहे। 2018 के इंतखाबात से कबल वो PTI में शामिल हुए थे। शहर कायद में सानवी तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। 3,80,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहानी अमल को शफाफ और मुनज़्ज़म बनाने के लिए हुक्काम की जानिब से खुसूसी इंतजामात। पर्चों की बरवक्त तरसील के लिए शहर के 18 टाउन्स में 25 हब कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। नकल की रोकथाम के लिए करीबी फोटो स्टेट दुकानें भी बंद रखने का फैसला। शहर कायद में एक बार फिर टारगेट सर उठाने लगी। नॉर्थ कराची में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, सियासी जमात का कारकुन जाम बहक हो गया। लांडी में पुलिस कार्रवाई के दौरान फायरिंग से 60 साला खातून जख्मी हो गई, अस्पताल मुंतकिल। मौजको में एक नौजवान की झुलसी हुई लाश मिली। सीटीडी और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई, कलदन तंजीम का दहशतगर्द पकड़ा गया। गुलशन इकबाल और PIB कॉलोनी पुलिस की भी कार्रवाइयाँ। स्ट्रीट क्राइम और नशियात फरोशी में मुलव्विस मुल्ज़िमान को धर लिया गया। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। पाकिस्तान में तैनात बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी आमद। वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी ने हाई कमिश्नर का इस्तकबाल किया। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने वफ्द के हमरा यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुलाकात की। दो तरफा तालिबी रवाबत बढ़ाने पर इत्तेफाक। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, तालीमी सहूलियात को सराहा। वाइस चांसलर डॉक्टर वसीम काजी ने उन्हें यूनिवर्सिटी के डिग्री प्रोग्राम्स और तालीमी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जामियात के दरमियान तालीम का पुल कायम कर रही है। ननकाना साहब में बैसाखी मेला शुरू हो गया। भारतीय सिख यात्रियों की आमद जारी। भारत से पहला सिख काफिला सरदार चकमोर सिंह की क़यादत में ननकाना साहब पहुंच गया। सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल, इंतजामिया की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर। 2800 से ज्यादा भारतीय सिख यात्रियों को वीजे जारी। 8000 से ज्यादा शिरकत मुतवक्के। सिख यात्रियों के लिए लंगर, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सहूलियात के बेहतरीन इंतजामात। सिख यात्रियों का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत काबिल सताइश। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने आएंगी। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। टीम कोयटा की क़यादत सऊद शकील और रावलपिंडीज की कप्तानी मोहम्मद रिजवान करेंगे। दोनों टीमें अब तक PSL 11 में 4 मैचेस खेल चुकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स एक मैच में कामयाब, रावलपिंडीज के हिस्से में कोई फतह न आ सकी। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स का 6, रावलपिंडीज का 8वां नंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेडिकल शोबे में नई भर्तियों का ऐलान कर दिया। PCB में सीनियर और जूनियर स्पोर्ट्स डॉक्टर्स की आसामियां शामिल। फिजियोथेरेपिस्ट और स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट की भर्तियों का इश्तिहार जारी। खिलाड़ियों की फिटनेस और तिब्बी सहूलियात बेहतर बनाने का फैसला।
درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 اپریل مقرر. بھرتیاں کرکٹ کے اسٹرکچر میں بہتری اور پروفیشنل میڈیکل سپورٹ کی طرف اہم قدم قرار. پیپلز سیریز میں پاکستان وومن ٹیم کی ڈریگز اینڈ کیکوس جزائر کے خلاف 8-0 سے تاریخی فتح. پاکستان وومن فٹ بال کی انٹرنیشنل سطح پر سب سے بڑی جیت. میچ عابد جان میں کھیلا گیا. قومی ٹیم کی شاندار کارکردگی. پہلے ہاف کے اختتام تک 4-0 کی برتری حاصل کی. لیلا بنارس اور اقصی مشتاق کی شاندار کارکردگی. متعدد گول اسکور. پاکستان نے سابقہ ریکارڈ توڑ دیا. مالدیپ کے خلاف 7-0 کی فتح پیچھے چھوڑ دی.